बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत माजरत है, वाज बिजी होल डे, वीकेंड पे बहुत मेरा बिजी वीकेंड गुजरा, दैट इज़ व्हाई आई वाज नॉट एबल टू आंसर योर क्वेरीज. There were few questions which I have shared on Saturday afternoon, I guess. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. सो लेट अस क्विकली मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज task 1, part A. Write the scientific definition of work done. I guess everybody can do this. Work is done when some force makes a substance or an object to move. Actually substance chemistry में use करते हैं, physics के terms में हम कहेंगे makes an object to move in the direction of force. So this is actually not the definition of the work done. This is just we are completing this sentence. Work is done when. Okay ji. Next is, what is the unit of work? Everybody knows that the unit of work is joules. Some people they do call it joules, joules, जो भी कह लो, ठीक है. When is one unit of work done? And actually this definition is been given in your book. When a certain substance, when a 1 Newton of force is applied on an object and that object covers a distance of 1 meter, the work done is 1 joule. So it's on, for your reference, it's on page number 2. The definition is on page number 2. A donkey pulls a cart with a force of 100 Newton over 2 kilometers. So this is force and this is distance. So work done will be force multiplied by distance, of course, 100 multiplied by 2, and this is equal to 200 meters. This is equal to 200 joules. So बहुत simple है. You already know the formula. Work done is equal to force multiplied by distance covered in the direction of force. So this is a pretty straightforward question, D part. Now E part. A car with 2 men in it broke down. For 20 minutes they tried to push it to the nearest garage, which was 500 meters away. One man pushed with the force of 200 Newton, the other with the force of 250 Newton. However, the car was too heavy and didn't move. How much work did they do? So the total force is 250 plus 200. It's 450, but the distance covered is 0. So actually the work done is 0, right? So E is also a very pretty straightforward question. Now moving on to this task 2. A boy pushes a box of 2 meters long a smooth surface. He then pushes the same box 2 meters along a rough surface. In which situation will more work be required? अच्छा देखें, when friction is more, work आपको force, obviously you will have to apply more force. ठीक है. Distance is same in both cases क्योंकि distance is 2 meters. Distance is 2 meters here along a smooth surface, and the distance is 2 meters here along a rough surface, but the magnitude of the force will be greater. It means force into distance, this product will be greater. Complete the following. मेरा ख्याल है ये हो जाएगा सबसे 1 किलो जूल्स और 1 मेगा जूल्स. नीचे देख लेते हैं. Calculate the work done in the following situations. Take 1 kg F is equal to 10 Newton. अच्छा जी. To lift a 10 kg school bag from the ground on top of the bus 3 meter high. अच्छा, यहाँ फार्मूला क्या लगना है वो मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ. Actually 3 meter high. This is work done against gravity. Whenever we have a work done against gravity, it's potential energy. We call it gravitational potential energy. The formula will be mgh. Mass is 10 kg. Gravity is 10 Newton. This is force of gravity. This is acceleration due to free fall. अभी हमने ये नहीं पढ़ा. हमें सिर्फ उसका फार्मूला दिया हुआ है mgh. So value of g is 10 and the height is 3 meter. So the potential energy will be equal to 10 into 10 into 3. अच्छा, उसने कहा है work done. For example, this is an object, उसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, तो all the work done is stored in the form of potential energy, right?
तो आप यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कैरी अ 330 kg suitcase up to the fourth floor if each floor is 2 meter high। बहुत आसान है, तो आपने वही ले लेना है। Now this is also the work done against gravity। So 30 kg suitcase multiply by 10 multiply by 2, so this will be the potential energy, right? अच्छा देखें, work done is equal to force into distance, so लेकिन what we have been given here, this is 30 kg, मैंने यहाँ 30 kg लिख दिया, but how to convert into force? We'll multiply by 10, right? So I want to make it simple for you people। शायद mgh किसी को समझ ना आ रहा हो, तो आपने जब भी mass दिया हुआ है and we are pulling it against and we are raising it against gravity, so how we convert? We multiply mass with 10, now it's the force। okay, अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये सब कुछ हो जाएगा। When a force of 5 Newton, now look, here we have been given the mass 30 kg, 10 kg, so we multiplied by 10, we convert into force, and then we multiply by that force with 3 meter, so that was this way around। यहाँ क्या है, यहाँ उसने 5 न्यूटन दे दिया है, बहुत आसान है, but now this is 40 centimeter। so what you need to do, you need to convert 40 centimeter into meters, we 40 divided by 100 कर देंगे। same is the case here, now this is 2 kg, now this is 30 meter away। to carry a 2 kg school bag from the classroom to the school gate 30 meter away, how you convert 2 kg into force? 2 multiplied by 10, this will be 20 newton, right? ये भी बहुत आसान है। 20 newton fruit is falling freely from the top of a tree 300 centimeter high, so this is force, this is distance, you only convert this distance into meters by dividing by 100 and you'll get your required answer। State that energy changes that takes place in question 5। now this is very easy। fruit is falling from the top of the tree, at the top of the tree, let's say fruit is here at the top of the tree, it has potential energy which converts into kinetic energy and which later converts, upon hitting the ground, this kinetic energy converts into heat and sound energy। right, still you have any queries, you can always send me a WhatsApp। अच्छा जी, आगे चलते हैं। which types of these potential and kinetic energy are listed in your student book? ये सबसे हो जाएगा, आपने अपनी बुक खोलनी है, there are various types of potential energy given in your book, वो हमने यहाँ लिख देने हैं। sort them into types of energies, बहुत आसान है। everybody can guess, this is elastic potential energy, dolphin moves with a high speed, kinetic energy, here sound energy, atomic bomb, nuclear energy, extension cord, there is electrical energy producing electricity, electrical energy, and heat energy in the barbecue, in the hair dryer, a hair dryer gives us kinetic energy, sound energy, kinetic energy of the air, sound energy, heat energy, and skateboard gives us kinetic energy। अच्छा जी, ये भी सब प्लीज़ खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। स्काई जंपर अबाउट टू स्टार्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड here look here, potential energy is converted into kinetic energy, right? so these are different energy changes, आपने इसको खुद ही से देख लेना। बैट्समैन प्लेइंग क्रिकेट, उसकी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेट वो जब हिट करेगा बॉल को तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेट एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग एग्जांपल, बर्निंग कैंडल, स्ट्रेच स्ट्रिंग इज रिलीज्ड, अ कार रनिंग ऑन पेट्रोल, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। हमने ये एग्जांपल्स क्लास में भी किए हैं और इसके अलावा भी हम मेरा ख्याल एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। इधर आ जाइए, नेम द एनर्जी प्रेजेंट, हाँ ना, दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, दिस क्वेश्चन। पावर स्टेशन, कोल बर्निंग, अच्छा क्या लिखा हुआ है पहले देख लें जनाब। नेम द एनर्जी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स,
कोल बर्निंग, कोल बर्निंग, कंबशन ऑफ कोल हो रही है, सो देयर विल बी हीट एनर्जी. स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन में या तो स्टीम टरबाइन मूव कर रही है, उसके अंदर स्टीम है, स्टीम मूव कर रही है, सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी. यू विल नॉट राइट एब्रीविएशन के ई, यू विल राइट कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी. स्टीम टरबाइन. जनरेटर, जनरेटर इज गिविंग अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. प्रोपेलर, एरोप्लेन में प्रोपेलर्स होते हैं, तो दे आर गिविंग अस काइनेटिक एनर्जी, प्रोपेल करते हैं ना वो. फ्यूल, फ्यूल गिव्स अस हीट एनर्जी, राइट. तो इसी तरह नीचे हमारे पास वी हैव इंजन, इंजन, इंजन से साउंड एनर्जी आती है, इंजन से हीट एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस, राइट. whole plane, actually every energy in plane is converted into kinetic energy. इसी तरह गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो अल्टीमेटली द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. टीवी व्हेन स्विच्ड ऑन, वायरिंग, वायर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, स्पीकर्स में साउंड एनर्जी है. पेंडुलम स्विंगिंग टू एंड फ्रो. अच्छा, यहाँ एक्चुअली यहाँ से ये क्वेश्चन मिसिंग है, तो इसको हम छोड़ देंगे, राइट. अच्छा, पेंडुलम स्विंगिंग टू एंड फ्रो क्या हो सकता है इसमें? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली दिस इज पेंडुलम, पेंडुलम, पेंडुलम मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फिर वापस इस डायरेक्शन में, और फिर इधर, राइट. दिस इज मूविंग. व्हेन इट इज हियर at the extremes it has potential energy, maximum potential energy. When it accelerates downwards, potential energy is converted into kinetic energy. Here it has maximum kinetic energy, and then it moves to the other side, right. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. State the energy changes that take place in the following. Working of a drill machine. पता है आपको, शोर आता है बहुत ज़्यादा. There is sound energy, सबसे ज़्यादा sound energy है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रिल है. न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोडिंग, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी है. एस्केलेटर मूविंग, काइनेटिक एनर्जी. अ मूविंग ट्रेन, काइनेटिक एनर्जी. अ गन इज फायर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, हीट एनर्जी. These two are sound energy as well. A gun is fired. Why are LEDs about 99% efficient? Where 1% of the energy goes? Right? That 1% energy goes in the form, is wasted in the form of heat energy, right. So why are the LEDs about 99% efficient? Okay. Now write down 5 ways to save energy. थोड़ा सा खुद देख लीजिएगा, ये बहुत आसान सी बात है कि एनर्जी किस तरह हम सेव कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि हाउ वी कैन सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको इस डिमेंशन में देख लीजिएगा यहाँ. ओके, नाउ दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड बिकॉज इसमें बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, और ये आपके पास पेज नंबर, कुछ डेफिनेशंस हमारे पास पेज नंबर 16 पे हैं, और 16 to 24 ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. रूट्स का फंक्शन क्या है? एक्चुअली रूट्स दे एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स वो ग्रिप, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती हैं प्लांट को. मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, राइट. स्टेम, स्टेम सपोर्ट करती है. लीव्स, लीव्स वन ऑफ द फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस, जो हमने पढ़ा है. उसके अलावा लीव्स का फंक्शन जो है वो गैशियस एक्सचेंज भी है. रिस्पायर करते हैं लीव्स, लीव्स से प्लांट रिस्पायर करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है और ऑक्सीजन इन होती है, और तो रिस्पायर वो लीव्स. ये आप ओ लेवल्स में जाके भी इंशाल्लाह फॉर्म 3 में या फॉर्म 4 में आएगा, वहाँ पढ़ेंगे. नीचे फ्लावर्स, फ्लावर्स, फ्लावर्स डू रिप्रोडक्शन. देखें, जब भी कोई फ्रूट बनता है तो पहले फ्लावर बनता है, राइट. तो फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होती है. फ्रूट, फ्रूट फिर जनरेशन को आगे कैरी करता है. फ्रूट में सीड होता है, दैट व्हेन दैट सीड इज डिस्पर्स्ड इट ग्रोज इनटू, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं इस तरह प्लांट्स, राइट. इधर आ जाइए जल्दी से, टाइम भी शॉर्ट है, ज़रा जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर दें. वाई आर द पेटल्स कलरफुल एंड वाई डज द फ्लावर स्मेल नाइस?
Why? They want to attract insects. Some flowers, some plants, are self pollinated, others are wind pollinated. So why are the petals colorful and why does the flower smell nice? Because they want to attract bugs, insects. What is the male reproductive organ of the flower? कार्ल नहीं बताऊंगा, आपने खुद देखना है, आपने इसको फाइंड आउट करना है ऑन पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डेफिनेशंस हैं जो आपने अच्छे से याद करनी है, हम बहुत दफ़ा क्लास में कर चुके हैं. वट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड? यू नीड टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ. ये बहुत आसान सी चीज़ है. क्योंकि मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट, कम ऑन, कौन सा पेज था? ओके. टू डिफरेंट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दैट आर कलरफुल एंड सेंटर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट. टू डिफरेंट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. अच्छा देखिए, मैंने बताया था कि एक फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल पार्ट हो सकता है, and that male and female part may be on the different flowers, right? But they are on the same plant. This is the punchline. They are on the same plant. क्या होता है same plant पे? Self pollination, right? Is this an example of wind pollinated or insect pollinated flower? Now this is tricky. Flower is colorful, scented. Why? Wind pollinated flowers, they are not colorful, they are not scented. Now this is the hint for you. Okay? इसको खुद से करना है. ये चले मैं बता देता हूँ. नो, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कलरफुल नहीं. ग्रास कलरफुल होती है, उसके ऊपर जो फ्लावर लगता है, हमने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, राइट? सो नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग एडेप्टेशंस आर फॉर इंसेक्ट्स, विंड और एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स. पोलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर आर स्मॉल एंड लाइट. पोलन ग्रेन्स आर लाइट, राइट? पेटल्स आर कलरफुल. अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं. पोलन ग्रेन्स आर स्मॉल इनसाइड एंथर आर स्मॉल एंड लाइट. स्मॉल है और लाइट है, सो दे मे बी टेकन अवे बाय द फोरहेड्स ऑफ द फोरहेड्स के ऊपर जो स्पाइक्स होते हैं हनी बीज के, उसमें एडजस्ट हो सके, इसलिए स्मॉल है. लाइट इसलिए है कि वो उसको ईजिली कैरी अवे कर सके. पेटल्स आर कलरफुल, पेटल्स कलरफुल है. दिस इज फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन. दिस इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. शॉर्ट स्टेमन्स, प्रोटेक्टेड स्टिग्मा. ये देखिए, जो विंड पॉलिनेटेड वो बहुत ओपन स्ट्रक्चर होगा फ्लावर्स का, खुले होंगे, उनका स्टिग्मा वो बाहर हैंग कर रहा होगा. तो इधर क्या है, इधर इसको जरा गौर से देख लेते हैं. हाँ जी, एंथर हैंग करता है, मैंने स्टिग्मा कह दिया, स्लिप ऑफ टंग. अच्छा, शॉर्ट स्टेमन्स, ये insect pollinated. Pollen grains have wings, feathery, they are feathery, it means this is wind pollination, for wind pollination. Seeds are hard, animal pollinated flowers, ताकि एनिमल जब उन सीड्स को खाएं तो अंदर डाइजेस्ट ना हो जाए, वो ऐसे ही बाहर निकल जाएं उनके फीसेस के साथ. Petals have scent and nectar, this is for insect pollination. Seeds have hooks, wind pollination. दिस इज़ फॉर एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स. कोई बर्ड वगैरह आता है तो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं विद हुक्स, राइट? लॉन्ग फिलामेंट विद एंथर हैंग्स आउट ऑफ द फ्लावर, ओपन स्ट्रक्चर. दिस इज विंड पॉलिनेटेड फ्लावर. पोलन ग्रेन्स आर न्यूमरस. दिस इज एक्चुअली इस तरह के फ्लावर्स को बैट दे डू पॉलिनेट बिकॉज और ये वो क्या कहते हैं, कम ऑन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में बहुत सारे वो होते हैं. पोलन ग्रेन्स आर न्यूमरस, पोलन ग्रेन्स आर न्यूमरस. दिस इज फॉर विंड पॉलिनेशन. क्यों? देखिए, फ्लावर के अंदर बग है, बग ने एक जगह से दूसरे एग्जैक्ट फ्लावर में जाना है. विंड पॉलिनेशन में आपने गर्मियों के यू हैव ऑब्जर्व इन द समर सीजन दैट कि जितने आम के दरख्त हैं उनके नीचे बहुत सारे पोलन्स होते हैं. विंड पॉलिनेशन में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स ज़ाया हो जाते हैं. सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स दे ग्रो मोर पोलन्स. अच्छा, वो जो बैट वाली एग्जांपल थी वो मेरा ख्याल है चेक पॉइंट में है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करूँगा यहाँ. पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी. वाई दे आर स्टिकी? बिकॉज उन्होंने उनके साथ स्टिक करना है. ये एनिमल पॉलिनेटेड भी हो सकते हैं और ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड भी हो सकते हैं. जल्दी से इधर आ जाइए. नेम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फंक्शन. सेपल्स प्रोटेक्ट द अनओपन फ्लावर. पेटल्स दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. और इस तरह ये एंथर, स्टेमन, स्टिग्मा, कार्पल, ओवरी, नेक्टरी ये आने चाहिए आपको. लास्ट टाइम जब टेस्ट हुआ था तो बहुत सारे बच्चों की बेसिक चीज़ें नहीं आती थी, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है. दिस इज ऑन पेज नंबर 16.
ऑल द डेफिनेशंस इसी सीक्वेंस में सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं वहाँ. Now define the following terms. Okay, this is chapter 3, ductile, malleable. Ductile and malleable, the definitions are on page number 32, right? Book खोलिए, वहाँ से पढ़िए. What are alloys? Alloys, the definition is on page number, wait. Alloys, page number 40. राइट नहीं तो नोटबुक खोले, नोटबुक में मैंने लिखवाया हुआ है. नेम द मेटल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग इन alloys. तीनों alloys, मोनल, ब्रॉन्ज, स्टील, they are on page number 41 and 40. Do open your book and do find these things. How does graphite behave differently from other non-metals? Now this is interesting. This question. How does graphite behave differently? Actually, graphite conduct electricity. This is the only known metal which conduct electricity, right? You need to memorize. This is important. This question is important. Now we have put following metals into dilute. Come on, this is very easy. Write your observations. Magnesium, copper, zinc, iron. When we put them in acid, copper will not react, beta. Copper doesn't react. This is from reactivity series. This question is from reactivity series, which is on page 34, 35, 36, and even all the observations they are given on page number 34. So you will find these observations. So magnesium, sodium, calcium, the reactions are extremely violent with acid. Potassium, sodium, calcium, the reactions are violent with magnesium, aluminum, zinc, iron, tin, lead. The reaction is moderate, it's not that vigorous, but the reaction is fast. And in all these there will be release of hydrogen as well, because अभी recent एक उसमें हमने पढ़ा है acid plus metal, salt plus hydrogen gas. तो definitely observation में आप लिखेंगे effervescence, colorless gas release which relights a glowing splint. Copper doesn't react. Copper, silver, gold, platinum, they don't react with acid. तो page number 34 निकालना है. The answer to this question will be on page number 34. Now we have put the above metal in order of the reactivity with acid. खुद ही करना है. Aluminum is an active metal but sometimes give odd results. Why? Question ही odd है. ऐसे इस तरह पूछना नहीं चाहिए, थोड़ा सा straight forward होना चाहिए question को. तो actually aluminum is reactive. आपको याद होगा मैंने aluminum can वाली एक story सुनाई थी. ठीक है. Why aluminum is apparently unreactive? Because it has fine layer of oxide over it which makes it inert, unreactive. तो देख लीजिएगा प्लीज थर्ड. वो मेरी कैन वाली स्टोरी भी याद कर लीजिएगा क्या थी. अब सारी चीज़ तो वीडियो में नहीं बतानी ना. What happens to iron when it is exposed to air or water? कुछ भी नहीं, right? There will be no immediate effect. लेकिन ये नहीं लिखना. Actually after 6 to 7 days a layer of rust will appear on iron. बस powdered rust will appear on iron. What is the chemical name of rust? Iron oxide. याद रखना है प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन. ओ कम ऑन, ये क्या हो गया? एक मिनट बच्चों, थोड़ी सा ग्लिंच आ गया. ओह कम ऑन. कहाँ से बंद हो गया? इसको बंद कर देते हैं. हाँ जी, कहाँ थे हम? What is the chemical name of rust? Iron oxide. Which metals are more reactive with oxygen? Obviously जो reactivity series में ऊपर वाले metals हैं, the higher ups, potassium, sodium, calcium, they are more reactive with oxygen. And as we go down the reactivity series, the reactivity decreases. That's what we have discussed in the class. ये 5-6 questions लाजमी गौर से देखने बेटा आप लोगों ने. Now this is the question. देख लेते हैं, हो सकता है आधा दिया हो पुराना दिया हो. देखते हैं. Your teacher will demonstrate the following experiments about displacement. और ये मैंने डिस्प्ले किए हैं during the last term, last day. I have shown you मतलब demonstrated you these experiments. One or more spotting tiles will be set up so that you have 16 wells available. Each well will contain a solution of metal nitrate to which a metal piece of metal will be added. It will look like the diagram below. Magnesium nitrate, zinc nitrate, lead nitrate, copper nitrate. सवाल क्या है? Even without any knowledge of the reactivity, there are 4 wells where you can already predict nothing will happen. Write a large S in these will explain
व्हाई यू थिंक नथिंग विल हैपन? बहुत आसान सी बात है, देखो इसको कैसे करना है। मेटल हायर इन रिएक्टिविटी, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। मेटल हायर इन रिएक्टिविटी विल डिस्प्लेसेस, ओ कम ऑन, इतना जूम आउट नहीं किया था। वापस चलते हैं। मेटल हायर इन रिएक्टिविटी विल डिस्प्लेस मेटल लोअर इन रिएक्टिविटी फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, और ये लास्ट टर्म में एवरीबडी गॉट दीज आंसर्स राइट। ओके, याद होगा, लेकिन चलें एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। कम ऑन, अभी वेयर इट इज। अच्छा जी, देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है मैग्नीशियम मैग्नीशियम से रिएक्ट नहीं करेगा, देयर विल बी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जूम आउट करके देखें, 150। अब ये ठीक है। अच्छा जी, कहाँ कहाँ रिएक्शन नहीं होगा? मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्रेट से रिएक्ट नहीं करेगा, जिंक जिंक नाइट्रेट से नहीं करेगा, लेड लेड नाइट्रेट से नहीं करेगा, और कॉपर कॉपर नाइट्रेट से नहीं करेगा। अच्छा, नाउ गो टू द रिएक्टिविटी सीरीज। Is magnesium higher? Yes, magnesium higher. Magnesium will displace zinc. Magnesium will even displace lead. Magnesium will displace copper. Now zinc. Zinc cannot displace magnesium because zinc is lower in the reactivity series than magnesium. Listen again. Metal higher in the reactivity will displace metal lower in the reactivity from aqueous solution. Tick, 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 tick. Cross, cross, cross. Oh, yes. अच्छा जी, तो दैट वाज इजी। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन? यहीं से इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब आई डू अंडरस्टैंड कि रात 11 बज गए हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह उठ के बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आई रिकमेंड कि ये वीडियो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, हो जाएंगे। अब ये वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। अब आगे चलते हैं। हाउ आर द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स? खुद ही लिखा हुआ है यहाँ, थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। कार्बन से नीचे वाले इलेक्ट्रोलिसिस से भी कर सकते हैं, बट वी हीट द और एंड मिक्स इट विद कार्बन। हाउ आर द एलिमेंट्स प्लेस्ड आफ्टर कार्बन एक्सट्रैक्टेड? वो लिखा हुआ है, आपने डायग्राम से बता देना है। कैन वी गेट एल्यूमिनियम बाय हीटिंग इट विद कार्बन? नो, कार्बन इज लोअर। एक्चुअली जितने भी ये होते हैं हमारे पास मेटल्स, दे अच्छा चलें, ये थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। फॉर्म 4 में हम पढ़ेंगे इसको। So carbon, we can heat the ore and mix with carbon only those elements which are below than carbon. Zinc is above carbon, so a plain no here. Here, can we get aluminum by heating it? No, because it's above in the reactivity series. Now these are easy. What does this sign actually tell us? Speed limit 30, speed limit 50. बहुत आसान सी बात है। If the maximum permitted speed is 50 and you drive at this speed for 1 hour, what distance will you cover? Now this is tricky question, बड़ी आसान सी बात है। You need to know the formula. Speed is equal to distance over time. Values put कर दीजिए प्लीज, स्पीड की, टाइम की, and you will work out the distance. ये सब कुछ हो जाएगा। If you drive 50 kilometer for 2 hours, what distance you will cover? See page 48 if you need some help. अच्छा जी, तो देखें साथ बताया भी है, नहीं समझ आ रही तो पेज 48 देख लीजिए। Complete the following equations, बहुत आसान है। Distance is equal to speed into time. Time is equal to distance over speed, and speed is equal to distance divided by time. इसको भी देख लीजिएगा खुद से। हाँ जी, if a jogging track is 800 meter long and you are to cover it in 30 minutes, if a boy jogs around 5 complete rounds, now this is tricky. 800 meters, 5 rounds, so total distance is 800 multiplied by 5. Now this is your distance, and please don't forget to convert either this is meter per second is the unit, kilometer per hour is the unit, so you need to convert these 30 minutes into seconds. 30 multiplied by 60 कर देंगे,
So 18, 16, 6 3s are 18, 1800 seconds. Ali lives 5 kilometers from school. It takes him 15 minutes to get to school. Sarah lives 15 kilometers from school. It takes her 45 minutes to get to school. Who travel at a higher average speed? कर लीजिएगा प्लीज. मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है, इसमें यही ट्रिक है, बाकी फार्मूला वही लगाना है. राइट. Nasir cycles to school at an average speed of 8 km per hour. What is his speed in meter per second? Now you need to convert 8 km per hour. ये मैं करके दिखा देता हूँ. When you are to convert kilometer per hour into meter per second, you will multiply by 1000 and divide by 3600. Right? This is how kilometer per hour will be converted into meter per second. And how meter per second will be converted into kilometer per hour, this is exactly opposite. 3600 divided by 1000 कर देना है इसको. Right? Hope you understand. Draw the distance time graph which represent constant speed. Distance time graph जारी बात है, मीटर लिखेंगे यहाँ, टाइम के नीचे सेकंड्स लिखेंगे, ये आ जाएगा क्वेश्चन, मुझे लगता है, दिल मेरा कह रहा है. Draw 3 distance time which represent constant speed. Constant speed का ये है distance time graph. Speeding up, distance लिखना है, मीटर उसका यूनिट लिखना है, टाइम लिखना है, सेकंड उसका. This is speeding up. Right? Slowing down. This red one is slowing down, black one is speeding up, and this yellow is constant speed. Right? इसको प्लीज देख लीजिएगा आप. चलिए जी आगे चलते हैं. What was her average speed during his journey? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम कर दीजिए यहाँ. टोटल डिस्टेंस इज 100. टोटल डिस्टेंस इज 100. टोटल टाइम इज दिस. टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम कर दीजिएगा. अच्छा, वो जाके रुक गया है वहाँ ड्यूरिंग हिज जर्नी. यहाँ तो रुक गया है ना, आपने बस यहाँ तक का टाइम ले लेना. आपने यहाँ तक का टाइम ले लीजिएगा क्योंकि वो वहाँ जाके रुक गया. हम ये वाला नहीं काउंट करेंगे. राइट? जर्नी खत्म हो गया ना उसका. जर्नी उसका यहाँ तो नहीं खत्म हुआ, जर्नी यहाँ खत्म हुआ, इस जगह खत्म हुआ. सो वी विल कंसिडर दिस इज द एज द एंड पॉइंट. अच्छा जी, बिटवीन विच टाइम इंटरवल वाज शी ट्रेवलिंग फास्टेस्ट. नाउ हाउ यू विल नो. अच्छा सुनिए, steeper the line, fastest will be the speed. ये लाइन जितनी ऊपर है, देखें एक लाइन में लगा रहा हूँ येलो और दूसरी कर्व है रेड. रेड वन इज हायर स्पीड, येलो वन इज लोअर स्पीड. अच्छा, नाउ दिस इज ब्लू. ब्लू वन इज द स्लोएस्ट स्पीड. आपने सिर्फ ये देखना है, देयर आर 3 लाइन्स, वन दिस, 2 लाइन्स, अदर दिस. Which one is more vertical? Vertical तो दोनों नहीं है, slanted है, लेकिन कौन सी थोड़ी सी ज़्यादा सीधी है? This one. This one is more vertical. इसका जो एंगल है वो ज़्यादा है, इसका कम है. So here it is speeding up. She है, कौन है? Her. Okay, she is speeding up here, right? Here. When cyclists want to go fast, they often cruise. Okay, fine. देखो, वो कह रहे हैं कि साइकिल चलाते हुए अक्सर यहाँ आपने फार्मूला वो बाइक रेस देखी होगी 10 स्पोर्ट्स पे, तो वो दे लाई डाउन, वो नीचे वो के झुक के चलाते हैं, बिकॉज यू नो एयर फ्रिक्शन स्लोज यू डाउन. सो शी वांट टू अवॉइड द एयर रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाई शी इज डूइंग दिस. ओके, ड्रॉ फूड चेन विथ 3 लिंक्स. ड्रॉ फूड चेन विद 3 लिंक्स. अभी देख लेते हैं, देख लीजिए, ये एक 3 लिंक्स हैं इसमें, 1 2 3. ये 3 लिंक्स हैं, इसमें 3 लिंक्स हैं, तो बना लीजिएगा. ये कोई इतना मुश्किल नहीं. यहाँ 3 लिंक्स हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 लिंक्स, 1 2 3. आप इसको इधर ले जाइए, 1 2 3, 3 लिंक्स. राइट? आप इसको ये भी कर सकते हैं, 1 2 3, 3 लिंक्स. राइट? ये 1 2 3, 3 लिंक्स.
राइट। तो कोई भी फूड चेन जिसमें 3 लिंक्स हैं वो। ड्रॉ फूड चेन विद 4 लिंक्स। वही 4 लिंक्स वाली कौन सी? 1 2 1 2 3 3 है सब में, 4 वाली नहीं है। देख लेते हैं अब इसका बुक में आंसर, व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट। बुक है इधर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर नहीं है, इसीलिए यहाँ से मैंने आंसर, मेरा ख्याल है कि इसका आंसर होना चाहिए। ग्रास, काउ ह्यूमन, प्लांट वॉर्म, इंसेक्ट, चिकन ह्यूमन, ये कहाँ है भाई? दोबारा देख लेते हैं। नहीं, वो कुछ और था। चिकन कहाँ है? देयर इज नो चिकन। वेयर इज प्लांट? एल जाए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। ओके 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 ओके, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 4 links means 1 2 3 4, these are 4 links। arrows 3 हैं but links are 4, right? और ये देखेंगे इसमें there are 1 2 3 links, there are 1 2 3 links, there are 1 2 3 links। तो ऐसे करना था, sorry, that was just mistake on my side। अच्छा जी, what is the difference between a food chain and a food web? food chain, food web पूरे इकोसिस्टम में का बताता है फूड वेब आपको। फूड चेन सिर्फ एक सिंगल फूड चेन होती है, राइट? इकोसिस्टम में जितनी बहुत सारी फूड चेन्स को सम कर दें वो फूड वेब बनता है। यू विल बी, कौन सा चैप्टर है ये हमारे पास स्पीडिंग अप के बाद? दिस इज वेयर आवर फूड कम्स फ्रॉम। और ये आ जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि ये जब हमने लास्ट टाइम भी चेक पॉइंट में भी ये वाला क्वेश्चन बहुत दफा आता था। फूड चेन और फूड वेब, नहीं, आपकी ग्लॉसरी में फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन नहीं दी हुई। चले बुक में भी देख लेते हैं, कहीं है? बुक में भी नहीं है, शायद हो कहीं। चले हम खुद कर लेते हैं। तो फूड चेन देखिए, चले मैं ऊपर ही बता देता हूँ। This is single food chain, 1 2 3, this is single food chain, this is food chain, this is food chain, yellow, green and black, they are individual food chains, but when a food web shows a linkage between different food chains, food chain shows the linkage between different species in a single food chain, right? तो इसको देख लीजिएगा प्लीज। नेम द 3 प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स तो जो सबसे, एक होते प्रोड्यूसर्स, राइट? ये प्रोड्यूसर है, माइक्रोफ्लोरा इज अ प्रोड्यूसर। इनके बाद दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, राइट? प्रोड्यूसर, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर in every food chain, the first one is producer, the second one is primary consumer। name any 3 primary consumers from the, name any secondary and tertiary consumers। देखें बेटा, producers कैसे होता है यार? ये ऐसे होता है। producers, the first one is always producer, the second one is primary consumer, then we have tertiary consumers, consumers बहुत सारा स्किप कर देता है टैब मेरा। एंड लास्ट इज tertiary, primary consumers। ओए कम ऑन, ओहो गलत हो गया, लिखने में गलती होगी। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी आएंगे बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स,
सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद वी हैव टर्शरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स क्वार्टनरी और सो ऑन, राइट। आगे चलते हैं। Where does the diagram have the shape of, why does the diagram have a shape of a pyramid? Actually, in any food chain the amount of energy decreases because क्या होगा, grass have an energy of 10,000 kilojoules, caterpillar will use some energy and will retain 1,000 kilojoules which will be transferred to birds. Upon the from this 1,000 kilojoules birds will retain some amount of energy and pass on some energy. So in a pyramid the energy decreases. Define herbivore, carnivore and omnivore, place them on the pyramid. Please कर लीजिएगा, राइट। थोड़ा सा गूगल कर लें। हर्बीवोर हर्ब्स खाते हैं, कार्निवोर जो हैं वो मीट खाते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। Why does the amount of energy keep on decreasing from one organism to another as you move up to the pyramid? ये भी वही बात है कि energy in a food chain decreases so it becomes a pyramid. अच्छा, why it keep decreasing, sorry यहाँ लिखना है कि energy decreases that is why it has a pyramid shape। यहाँ आपने लिखना है it because every species consumes some of the energy and passes on some amount of energy, कुछ जो कंज्यूम हो जाती है डेफिनेटली इसलिए डिक्रीज हो रही है। क्रिएट अ फूड चेन वेयर यू आर द टॉप कंज्यूमर, यू एट सम बीफ, प्लीज़ इसको खुद देख लीजिए, बहुत बच्चों वाली बातें हैं, हमने सारी डिस्कस की हुई हैं क्लास में। यू एट सम चिकन विच फेड ऑन द सेक्स विच एट सम वॉर्म्स। टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू कंज्यूम 10 kg ऑफ फूड, कर लीजिएगा, ये सारे तकरीबन आसान है इसमें। what does above tell you about the amount of plants needed for food? प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, आसान सी बातें। हम मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लिस्ट 3 ways in which plant A differs. Plant A and B grow in different soil in pots for 3 months. All other conditions were the same and for the following information were large and dark green, small and yellow. Condition well developed. Condition of flower, large number of flowers, very few, alhamdulillah very few flowers। तो I'll give you the hint कि कौन से पेज पे है। आपने देखना है पेज नंबर 62, राइट। येलो लीव्स क्यों हैं? Yellow leaves are due to the deficiency of potassium, right। poorly developed क्यों हैं, ठीक है। और very few flowers क्यों हैं? ये आपने जो है देखें, appearance of leaves small, condition of root system poorly developed। development of roots के लिए क्या चाहिए आपको? phosphorus चाहिए। और कंडीशन ऑफ फ्लावर, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स के लिए, राइट। और लीव्स बहुत कम है, राइट, उसके लिए नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में दोनों चाहिए। बोथ आंसर्स विल बी करेक्ट। अब आगे चलते हैं। लिस्ट 3 ways in which, अच्छा नेम 2 न्यूट्रिएंट्स कर लीजिएगा। वेयर वर द लीव्स ऑफ, वाई वर द लीव्स ऑफ प्लांट बी येलो, वाई वर द फीवर प्लांट्स, कर लीजिएगा प्लीज। टास्क 1, चूज द करेक्ट आंसर। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, यस। नाइट्रोजन इज रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम, इन व्हाट वे इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एनिमल्स? एज प्रोटीन्स, हमारे अंदर प्रोटीन्स हैं। विच ऑर्गेनिज्म ऑलवेज गेट इट्स एनर्जी फ्रॉम डेड मैटर? Decomposers, पढ़ा है हमने। What eventually happens to all energy in an ecosystem? It recycles. It is recycled by decomposers. Nitrates can be removed from the soil by the action of nitrogen-fixing bacteria in the decaying plant. Label the diagram. This diagram is on page number. There are diagrams on page 70, 71, and this diagram is on page number 70. Label this diagram. Okay, खुद हो जाएगी आपसे।
You can also label this diagram. It's also on page number 70. The next diagram is on page number 71. तो प्लीज इसको कर लीजिएगा. अच्छा जी. मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. वाई? व्हाट इज अर्थ कॉल्ड? अर्थ को तो ब्लू प्लैनेट कहेंगे ना. यू कैन यू एस्टिमेट विच परसेंटेज? अर्थ का जो रफली 1/3 है वो लैंड है, 2/3 जो है वो वाटर है, राइट? अच्छा सॉरी, इसके ऊपर वाली एक डायग्राम है वो मिसिंग है यहाँ, जिसके ऊपर है वो, इसलिए आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते. Which process in the water cycle requires energy? Where does this energy come from? Which has more runoff? ये हम कर चुके हैं. I have asked you this question in the test. Which process in water requires energy? Evaporation. Where does this energy comes from? It comes from the sun. Which has more runoff? A steep slope or gentle? देखिए, अब ये तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि माउंटेनियस एरियाज में ज़्यादा सरफेस रन ऑफ होता है, राइट? क्योंकि पानी की स्पीड बहुत तेज़ है. वादी नीलम में और इधर उधर जब आप दरिया नीलम पे जाते हैं तो पानी बहुत, द स्पीड ऑफ द वाटर करंट्स दे आर वेरी फास्ट, राइट? तो वहाँ सरफेस रन ऑफ ज़्यादा है. यहाँ अब आप प्लेन एरियाज में आ जाते हैं तो यहाँ सरफेस रन ऑफ इज लेस. List the use of water described in the book. We have done in the test. Which of these uses does not pollute the water? Explain your answer. अच्छा जी, वाटर के कौन से यूजेस पोल्यूट नहीं करते वाटर को? ये फिर आपने उन यूजेस में देख लेना. स्विमिंग या वो गार्डनिंग में यूज़ होता है वो पोल्यूट नहीं करेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोल्यूट नहीं करती. लेकिन ये देख लीजिएगा, आप वॉशिंग है वो उसमें स्केटिंग है वो नहीं करेगा पोल्यूट, लेकिन वॉशिंग है उसमें डिटर्जेंट चला जाएगा. कार वॉश में भी डेफिनेटली कोई डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो चला जाएगा. हम सीवरेज में जो यूज़ करते हैं वो ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पोल्यूशन होगी. जहाँ जहाँ पोल्यूशन नहीं होगी वो देख लीजिएगा. वो रिक्रिएशनल यूजेस में ज़्यादातर पोल्यूशन कम होती है. वाई आर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हार्मफुल इफ डंप इन द सी? डंप करेंगे सी में तो डेफिनेटली इट विल बी हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक मेरीन लाइफ. What disease are caused by untreated sewage? बैक्टीरिया, वो सॉरी डायरिया है, हेपेटाइटिस सी है, अनट्रीटेड सीवेज से आ रहा है क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है पानी. अनट्रीटेड सीवरेज है, और बहुत सारी बीमारियाँ. हाउ इज अ लिटर हार्मफुल टू मेरीन लाइफ्स? ही इज आस्किंग अबाउट सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट मेरीन लाइफ जो है वो डेफिनेटली, प्लास्टिक वेस्ट जो है मेरीन लाइफ भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. वो खाने वाली चीज़ समझ के खा लेते हैं, कुछ ट्रैप हो जाते हैं उसमें, गंद में, लिटर में. इफ़ देर इज़ लिटर इन द वाटर तो गंदगी हो जाएगी ना, ट्रैप हो जाएंगी उसमें एक्वाटिक लाइफ, उनके लिए बहुत मसला है. वाई इज़ वाटर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स? लिख लीजिएगा इसको खुद ही से. वाई वी नीड वाटर, वाई, राइट? तो ये यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? H2O. इज वाटर एन एलिमेंट और कंपाउंड? इट्स अ कंपाउंड. गिव एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट इन्वॉल्व वाटर. यू विल डू दिस योरसेल्फ. नाउ wait, खत्म. Now this is all for today. This is 12:14 on the laptop. What was the time? It's 11:14. Inshallah, I'll see you tomorrow. Allah Hafiz, bachcho.